ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شعیب اور چھوٹے کا نام زہیب تھا۔ اگرچہ شعیب تھا تو بڑا، مگر وہ بہت سیدھا سادہ تھا اور اس میں زیادہ عقل و شعور بھی نہ تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا زہیب اس سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ ہمیشہ ایک بات سوچا کرتا تھا کہ اس کے بڑے بیٹے میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو کہ ایک ولی عہد میں ہونا چاہیے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا۔ ملکہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ بادشاہ کے سارے کام وہ خود کرے۔ اس وقت بھی وہ بیٹھی بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ کچھ فکر مند ہے۔ اس نے کہا، ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ جہاں پناہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے کہا، ملکہ ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر ہم ایک بات کی طرف سے بہت فکر مند ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ملکہ بولی، مناسب سمجھے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس بات کی فکر ہے، ہو سکتا ہے ہم ناچیز کوئی مشورہ دے سکیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تخت و تاج اپنے کسی بیٹے کو سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو جائیں۔ شہزادہ شعیب اگرچہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، مگر ہمیں امید نہیں کہ وہ کاروبار مملکت کو ٹھیک طرح سے چلا پائے گا۔ ہم یہ تاج چھوٹے شہزادے زہیب کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہایت سمجھدار اور عقل مند ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ملکہ نے کہا، جہاں پناہ شعیب اور زہیب دونوں میرے بیٹے ہیں۔ مجھے ان دونوں میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، کیونکہ میں ان کو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں، اس نظر سے نہیں دیکھتی جس سے آپ دیکھتے ہیں۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس ملک کا اگلا بادشاہ ہمارا چھوٹا شہزادہ زہیب ہی ہوگا، بادشاہ نے کہا، اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ بادشاہ کا ایک وزیر شہباز تھا۔ وہ نہایت خوش آمدی، چاپلوس اور بادشاہ کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملانے والا شخص تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کا جان نثار اور وفادار ہے، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خوش آمدی اور چاپلوس لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے ہی میں عافیت ہے، مگر بادشاہ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا۔ وزیر شہباز کے دل میں لالچ اور ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ تخت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اپنے اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ سائے کی طرح بادشاہ کے پیچھے لگا رہتا۔ اس وقت بھی وہ بادشاہ کے کمرے کے باہر ایک کھڑکی کے قریب کھڑا بادشاہ اور ملکہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے جب بادشاہ کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ خوش ہو گیا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کی منزل قریب آ گئی ہے۔ بادشاہ کے اس فیصلے سے دونوں بھائیوں میں اختلافات شروع ہو جاتی اور مکار وزیر ان دونوں کو آپس میں لڑوا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ تمام باتیں سن کر اسی وقت کوتوال کے پاس پہنچا۔ کوتوال اس کا دوست تھا اور اس کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس کی طرح چلاک اور عیار شخص تھا۔ اس نے کوتوال سے کہا، ہماری کامیابی قریب ہے، تم تیار رہنا۔ دونوں شہزادوں میں جھگڑا شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے۔ ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور بغاوت کر کے اسے تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے بعد اس کو بھی راستے سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اس کو راستے سے ہٹا کر میں تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن جاؤں گا اور پھر تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ تمہیں اس معاملے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر کوتوال مسکرایا اور بولا، حضور، جو حکم آپ کا، میں تیار ہوں۔ رات کو بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور ملکہ بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو مخاطب کر کے کہا، ملکہ، عقل مندی اور سمجھداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں دو بیٹے دیے ہیں۔ ان بیٹوں میں شہزادہ شعیب نہایت نیک، شریف اور سیدھا سادہ ہے۔ شہزادہ زہیب میں بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا داری اور دنیا کے لوگوں کو چلانا بھی آنا چاہیے۔ بادشاہ کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو درست طریقے سے انجام نہیں دے تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اب ہم بوڑھے ہو چلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تخت و تاج سے دستبردار ہو جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بعد شہزادہ زہیب اس تخت پر بیٹھے۔ بڑا بھائی شہزادہ شعیب یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چھوٹے بھائی شہزادہ زہیب سے بولا، میں بہت خوش ہوں کہ ابا حضور کی جگہ تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ ایک وعدہ کرو کہ اپنے بادشاہ والے تخت پر تم مجھے بھی بیٹھنے دیا کرو گے۔ شہزادہ زہیب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔
बादशाह को इस रवैये पर बड़ी हैरत हुई। उससे तो ये तवक्का थी कि वो अपने बादशाह बनाए जाने का सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, मगर वो तो खामोशी से उठकर चला गया। बादशाह ने बड़े शहजादे शोएब को भी जाने की इजाज़त दे दी। शहजादा शोएब बाहर निकला तो वज़ीर पहले की तरह छुपकर इनकी बातें सुन रहा था। वो जल्दी से इसके करीब आया और बोला, शहजादे मेरे साथ आओ, मैंने छुपकर बादशाह सलामत की सारी बातें सुन ली हैं। छुपकर सुनने की क्या ज़रूरत थी, आप अंदर चले आते, शहजादे शोएब ने बड़े भोलेपन से कहा। इसके बाद सुनकर वज़ीर को सख्त गुस्सा आया। इसका दिल चाहा कि जूता उतार कर इस बेवकूफ़ शहजादे पर बरसा दे, मगर वो सब्र करके बोला, शहजादे साहब मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। वज़ीर की बातें शहजादे की समझ में नहीं आ रही थी, मगर इसके कहने पर वो इसके साथ चल पड़ा। वज़ीर शहजादे को लेकर बाग में आया और दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। आपको पता है बादशाह सलामत अपना ताज शहजादा ज़ोहेब के सर पर रखना चाहते हैं, वज़ीर ने बड़े पुरइसरार लहजे में कहा। तो इससे हमें क्या, हमारे पास इतनी रकम मौजूद है कि हम जब चाहें एक ताज बनवा कर अपने सर पर रख लें। हमें जो जेब खर्च मिलता है हम इसे एक जगह जमा करते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी अशरफियाँ जमा हो गई हैं, शहजादे शोएब ने लापरवाही से कहा। इसके बाद सुनकर वज़ीर झुंझला गया और तेज़ आवाज़ में बोला, शहजादे साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? बादशाह सलामत आपको नज़रअंदाज करके आपके छोटे भाई को बादशाह बनाना चाहते हैं, जबकि ये हक आपका है। ये तो हमें पहले से ही पता है कि अगला बादशाह ज़ोहेब होगा, अब्बा हजूर ने खुद बताया था। बस हमें ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि इसे बादशाह बनाकर वो खुद क्या करेंगे। शहजादा शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा। वज़ीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर इसने नरमी से कहा, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या करेंगे, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बादशाहियत का हक बड़े भाई का होता है। मेरा मशवरा है कि जब बादशाह सलामत ये बात करें कि तुम इनसे यही कहना कि वो बादशाह तुम्हें ही बनाए, वरना बहुत बुरा होगा। शहजादा शोएब सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अब हमारी समझ में सारी बातें आने लगी हैं। बादशाह बनना हमारा हक है क्योंकि हम बड़े हैं, हम इस हक के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर इसके बाद सुनकर खुश हो गया और सोच रहा था कि तीर निशाने पर लगा है। इसने शहजादे को शाबाश दी और खुद रुखसत हो गया। वज़ीर के जाने के बाद शहजादा शोएब इस इंतज़ार में था कि इसे मौका मिले तो वो बादशाह से कहे कि वो चूँकि इसका बड़ा बेटा है इसलिए तख्त व ताज इसके सुपुर्द किया जाए। शाम को वो बादशाह से मिलने के लिए इसके कमरे में गया, मगर वो वहाँ नहीं था। इसे ढूंढते ढूंढते वो बाग की तरफ निकल गया। इसने देखा कि बादशाह, मलका और शहजादा ज़ोहेब एक दरख्त के नीचे खड़े बातों में मसरूफ़ हैं। इसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और वो एक दरख्त के ओट में होकर इन लोगों की बातें सुनने लगा। शहजादा ज़ोहेब बादशाह से कह रहा था, अब्बा हजूर, ये एक असूल है कि हर बादशाह का बड़ा बेटा तख्त का वारिस होता है। बादशाह बनने का हक शोएब भाई का है। मैं इनकी हक तलफी नहीं करूँगा। मैं नहायत अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे आपके फ़ैसले से इख्तलाफ है। शहजादा ज़ोहेब की बात सुनकर बादशाह ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया और बोला, बेटा, इस तख्त व ताज के लिए तो अपने अपनों का गला काट देते हैं। हमारी तारीख इन वाक़यात से भरी पड़ी है। हमें हैरत है कि तुम इसको ठुकरा रहे हो। अब्बा हजूर, यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात भी तारीख में आ जाए और पढ़ने वालों को पता चले कि किसी ज़माने में एक शहज़ादा ऐसा भी था जिसने तख्त व ताज को ठोकर मार दी थी। शहज़ादा ज़ोहेब ने मुस्कुरा कर कहा। बादशाह अभी भी कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमारा शोएब एक सीधा साधा नौजवान है, इससे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहली औलाद होने की वजह से इनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। लाड प्यार से परवरिश पाने वाले बच्चों में खुद एतमादी की बहुत कमी होती है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर लूँगा। इनको बादशाह बन जाने दीजिए, फिर मैं इनको ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा कि इन पर अमल करके हमारा मुल्क दिन रात तरक्की करेगा। शहज़ादा ज़ोहेब ने कहा। मलका बड़े गौर से इसकी बातें सुन रही थी। शहज़ादा खामोश हुआ तो वो बादशाह से बोली, मैंने देखा है हमारे ज़ोहेब में बस दो चीज़ नहीं है। बादशाह ने हैरत से पूछा, मलका, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमारे शहज़ादे में नहीं हैं? अपनी माँ की इस बात पर शहज़ादा भी हैरानी से इसका मुंह तकने लगा। मलका प्यार से बोली, हमारे शहज़ादे में लालच और हिरिस नहीं है। इसके बात सुनकर बादशाह और शहज़ादा ज़ोहेब मुस्कुराने लगे। जब बादशाह और मलका वहाँ से चले गए तो शहज़ादा शोएब दरख्त के पीछे से निकलकर
इसके सामने आ गया। भाईजान, आप यहाँ कहाँ? शहज़ादा ज़ुहैब ने पूछा। हम दरख्तों के पीछे खड़े तुम लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया कि अब्बास ज़ुर की बात मानने से इनकार कर दिया, वरना हम तो इस नाइंसाफ़ी पर इनसे लड़ पड़ते। ये आज हमने सोच लिया था, लेकिन यूँ छुप छुप कर किसी की बातें सुनना तो बहुत बुरी बात है। इखलाक भी इसकी इजाज़त नहीं देता। शहज़ादा ज़ुहैब ने कहा। कोई बुरी बात नहीं है। शहज़ादा ज़ुहैब ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। हमारे वज़ीर मोहतरम भी छुप कर अब्बा हजूर की बातें सुनते हैं। इन्होंने ही तो हमें बताया था कि चूँकि हम बड़े बेटे हैं, लिहाजा बादशाह बनने का हक़ हमारा है, इसलिए तो हम अब्बा हजूर से बात करना चाह रहे थे। शहज़ादा ज़ुहैब की समझ में चालाक वज़ीर की तमाम अयारियाँ आ गईं। वो दोनों भाइयों में दुश्मनी पैदा करना चाहता था। इसने फ़ैसला कर लिया कि इस अयार वज़ीर का भी बंदोबस्त करेगा। इसके बाद दोनों भाई महल में आ गए। अगले रोज़ शहज़ादा ज़ुहैब ने जब वज़ीर के बारे में छानबीन की तो दूसरी बातों के अलावा इसके इल्म में ये बात भी आई कि इसके साथ शहर का कोतवाल भी मिला हुआ है और दोनों तख्त पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये तमाम मालूमात हासिल करके शहज़ादा ज़ुहैब ने सोच लिया था कि इसको क्या करना है। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपना तख्त व ताज शहज़ादा शोएब के सुपुर्द कर दिया। इसी शाम शहज़ादा ज़ुहैब ने इससे कहा, भाईजान, अब तो आप बादशाह बन गए हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे अपना वज़ीर मुकर्रर कर लीजिए। अगर मैं वज़ीर बन गया तो ये दुनिया की पहली मिसाल होगी कि एक शहज़ादा वज़ीर बना है। यह दरख्वास्त मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आखिर कभी मेरी भी तो शादी होगी। अपना घर बार चलाने के लिए मेरी भी तो नौकरी होनी चाहिए। नौकरी ना हुई तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊँगा? तुम इसकी फ़िक्र मत करो, हमारे साथ ख़जाने हैं, एक ख़जाना मैं तुम्हें बख्श दूँगा। शोएब, जो अब बादशाह बन गया था, शाहाना अंदाज से बोला। शहज़ादा ज़ुहैब ने कहा, इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए कि वो ख़जाने आपके हैं, वो रआया की अमानत हैं। वैसे भी मैं अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन रखता हूँ। अगर वज़ीर बन गया तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि इनामात बांटने का सिलसिला ख़त्म कर दें। शहज़ादा ज़ुहैब वज़ीर बन गया। वज़ीर और कोतवाल ये सूरत हाल देख कर जल भुन कर रह गए थे। इनका तो मंसूबा ये था कि शाही ख़ानदान में भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और इनकी इस दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर तख्त पर कब्ज़ा करके मज़े करें। अगले रोज़ बादशाह बन जाने के बाद शोएब ने पहली दफ़ा दरबार लगाया। रात शहज़ादा ज़ुहैब ने इसे खूब समझा दिया था कि दरबार में क्या करना है। बादशाह ने दरबार शुरू होते ही इशारे से एक लंबे और खूबसूरत नौजवान को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। इसका नाम बहराम था और वो शहज़ादा ज़ुहैब का बचपन का दोस्त था। वो बहुत बहादुर और निडर था। वो दरबारियों के नशिस्त से उठा और करीब आकर बादशाह को झुककर फर्शी सलाम किया और फिर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, आज से हम इस नौजवान बहराम को शहर का कोतवाल मुकर्रर करते हैं और पुराने कोतवाल को नौकरी से निकालते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर वज़ीर का मक्कार और साजिशी दोस्त कोतवाल घबरा कर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, बादशाह सलामत, रहम कीजिए, मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतनी बुरी सज़ा मिल रही है? बादशाह ने कहा, कसूर भी बता दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, फिर तुम्हारे जराइम का पर्दा चाक किया जाएगा। कोतवाल समझ गया था कि इसकी और वज़ीर की साजिश पकड़ी गई है। वो हाथ जोड़कर बोला, हजूर, मैं बेकसूर हूँ, ये वज़ीर ही था जो मुझे बेखाता था। वज़ीर ने जो ये सुना तो वो तैश में आकर खड़ा हो गया। क्या बेकाया था मैंने तुम्हें? झूठ बोलते हो। कोतवाल ने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम ही ने तो कहा था कि बादशाह सलामत छोटे शहजादे को तख्त व ताज सौंप रहे हैं। हम बड़े शहजादे को अपने साथ मिला लेंगे और इसे बिकाएंगे कि तख्त पर बैठने का हक़ इसका है। इस तरह दोनों भाइयों में दुश्मनी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इस दुश्मनी से फ़ायदा उठाकर हम तख्त व ताज पर कब्ज़ा कर लेंगे। मैं बादशाह बन जाऊंगा और तुम वज़ीर। बहराम, जो अभी कुछ देर पहले ही कोतवाल बना था, इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वज़ीर और कोतवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। इन पर बगावत का मुकदमा चलेगा। हुक्म की तामील इसी वक्त हो गई। सिपाही इन्हें जंजीरों में जकड़कर अपने साथ ले गए। इसके बाद बादशाह शोएब ने दरबार में आए हुए लोगों की फरियादें सुनी और उन्हें शहज़ादा ज़ुहैब के मशवरे से निपटा दिया। थोड़ी देर बाद दरबार का वक्त ख़त्म हो गया और सब उठकर चले गए। शहज़ादा शोएब वज़ीर बन जाने के बाद अपने भाई को अच्छे अच्छे मशवरे देने लगा, जिसकी वजह से चंद रोज़ बाद मुल्क में एक खुशगवार तब्दीली नज़र आने लगी। बादशाह और मलका ये देख देख कर बहुत खुश होते थे और खुदा का शुक्र अदा करते थे कि शहज़ादा ज़ुहैब की अक्लमंदी की वजह से सारे मामला ठीक ठीक चलने लगे हैं।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई भाइयों में निफाक डालने और इनमें झगड़ा करवाने की कोशिश करे तो इन कोशिशों को अपनी हिकमत अमली और अक्लमंदी से नाकाम बना देना चाहिए, जैसा कि शहज़ादा ज़ुहैब ने बनाया था। दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए तो वो भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।